Welcome to the another video lecture on linear differential equations. Case number 3. When x equal to small x raised to power m, where m is any number 1 to 3 up to so on, then what is the particular integral? In this case, particular integral equal to 1 upon fd x raised to power m, which is equal to f of d raised to power -1 x raised to power m. इसको हम अल्जेब्रिक फॉर्म भी कहते हैं. इसमें नीचे जो डिनोमिनेटर में आपके पास d की टर्म्स में पॉलिनोमियल इक्वेशन बनती है उसको हम रिवर्स करेंगे. फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक ए क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल of d square y upon dx square plus dy by dx equal to x square plus 2x plus 4. This question is based upon case number 3. Solution: it can be written as d square plus d times y equal to x square plus 2x plus 4. So therefore, particular integral, that is y, which is equal to 1 upon d square plus d into x square plus 2x plus 4. It can be written as 1 upon d can be taken out, 1 upon d into d plus 1, x square plus 2x plus 4. It can be written as 1 upon d times 1 plus d raised to power -1 into x square plus 2x plus 4. We are applying case number 3, which is equal to 1 upon d using binomial theorem, that is 1 plus nx plus n into n minus 1 upon 2 factorial plus up to so on, 1 minus d plus d square minus up to so on, x square plus 2x plus 4 इक्वल टू 1 अपॉन डी. अब यहाँ पे दिस इज इम्पॉर्टेंट टू नोट, x की डिग्री हाईएस्ट 2 है. एक्स स्क्वायर को एक बार डिफ्रेंशिएशन किया, दैट इज 2x. एक बार फिर करेंगे डबल डिफ्रेंशिएशन, वी विल गेट ओनली 2. अगर तीसरी बार करेंगे तो 0 मिलेगा सारा ये. तो यहाँ से यहाँ तक दिस इज सफिशिएंट. 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 1 अपॉन डी. 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 माइनस डी मीन्स डिफ्रेंशिएशन, minus of, minus is taken out, derivative of with respect to x, 2x plus 2 प्लस फिर से एक बार डिफ्रेंशिएशन किया, डी स्क्वायर है, इसी का कर लेते हैं, दैट इज 2. 1 अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x कैंसल आउट, 4 minus 2 plus 2, that is 4, x plus 4. 1 upon d means integration
x square plus 4 into dx equal to x3 by 3 plus 4 times x. This is the required particular integral. Case number 4. When capital X, which is right hand side terms in f dy equal to x, equal to e raised to power ax and v, where v is a function of x only, then the particular integral formula becomes equal to 1 upon fd e raised to power axv, that is x first, which is equal to 1 upon f of d e raised to power ax into v, which is equal to e raised to power ax 1 upon d is replaced by d plus a. This is very carefully to note, d plus a into v. This becomes the particular integral. For example, let's do another question. Question number 2. Find particular integral of d square minus 2d plus 4 times y e raised to power x cos x. Solution. Particular integral, that is y, which is equal to 1 upon d square minus 2d plus 4 e raised to power x cos x. अब एग्जैक्टली ये इसकी फॉर्म में है, e रेज टू पावर एक्स वी. a की वैल्यू यहाँ पर 1 है और v की वैल्यू यहाँ पर cos x है, विच इज ए फंक्शन ऑफ x ओनली. नाउ अप्लाइंग द फॉर्मूला we will get e raised to power x 1 into x. It can be written as 1 upon d is replaced by d plus 1, d plus 1 square minus 2 times d plus 1 plus 4 cos x e raised to power x 1 upon d plus 1 square is d square plus 2d plus 1 minus 2d minus 2 plus 4 cos x, which is equal to e raised to power x times 1 upon d square. We can write d square plus 2d minus 2d cancel out, plus 1 plus 4 1 minus 2 minus 1 plus 4, that is plus 3. All terms are 0. Here is only this cos of x. We can write this. Therefore, we apply here case number 2. We apply case number 2 जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कर दिया है, 1 अपॉन एफ डी टाइम्स कॉस ए एक्स प्लस बी, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे डी स्क्वायर होगा, तो डी स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय माइनस ए स्क्वायर, दैट इज माइनस 1 स्क्वायर, दैट इज डी स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस 3, दैट इज 2 e raised to power x upon 2 cos x. This is the required particular integral. Now we know that complete solution is formed by complementary function plus particular integral. Complementary function involves arbitrary constants, but in case of particular integrals there are no arbitrary constants. दोनों सॉल्यूशंस को मिला के हमें कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है. लेट्स ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व
d2y upon dx square plus dy by dx plus y equal to 1 minus e raised to power x raised to power 2. Solution. It can be written as in symbolic form d square plus d plus 1 into y equal to 1 minus e raised to power x square, where d equal to dy dx, डिफरेंशियल ऑपरेटर. कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो पहले CF निकालना पड़ेगा. CF कंप्लीमेंट्री फंक्शन, राइट हैंड साइड इक्वल टू 0. तो देयरफॉर वी गेट ऑक्सिलरी इक्वेशन डायरेक्टली d square plus d plus 1 equal to 0, or auxiliary equation can be written m square plus m plus 1 equal to 0. इन दोनों में से किसी को भी सॉल्व कर लेते हैं. इसको सॉल्व कर लेते हैं. m square plus m plus 1 equal to 0, m equal to minus b plus minus square root b square minus 4ac upon 2a, that is equal to minus 1 plus minus under root 1 square, that is 1 minus 4 upon 2, minus 1 plus minus 1 minus 4 minus 3, that is under root 3 iota upon 2. Therefore roots are in imaginary. Let m1 equal to minus 1 plus under root 3 iota by 2, m2 equal to minus 1 minus under root 3 iota upon 2. इस टाइप के इमेजिनरी रूट्स है. इसके लिए हमने कम्प्लीमेंट्री फंक्शन पहले ही निकाल चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में. तो देयरफॉर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू e रेज टू पावर रियल पार्ट इज minus 1 by 2, कॉमन है दोनों में, minus 1 by 2 into x, constant c1, cos of imaginary part, that is under root 3 by 2, under root 3 by 2x plus c2 sin times under root 3 by 2x. This is called complementary function. अब हमें ज़रूरत पड़ती है पर्टिकुलर इंटीग्रल की. तो पर्टिकुलर इंटीग्रल अभी हमने निकाले हैं कुछ. लेट्स ट्राई हियर. पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू y, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन d2 प्लस d प्लस 1 माइनस e रेज टू पावर x का होल स्क्वायर. इसको ज़रा ओपन कर लेते हैं. 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस d प्लस 1 a minus b का होल स्क्वायर, दैट इज वेरी सिंपल. 1 square, that is 1, plus b square e raised to power 2x minus 2ab minus 2ex. डायरेक्टली हम इसमें केस नंबर 1 का यूज़ कर लेंगे, जिसमें सीधा हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल इस फॉर्म में है. f of d e raised to power ax, that is equal to 1 upon f of a e raised to power ax, provided that f of a is not equal to 0. इसका यूज किया and we can find the required answer. Therefore 1 can be written as e raised to power 0 into x. तो 0 0 रखा, that is 1, e raised to power 0 into x. First integral is solved. Another case, plus 2 put किया, 2 square, 4 plus 2 6 plus 1 7, तो 1 upon 7 e raised to power 2x minus 2 times 1 put किया, 1 plus 1, so that is 3, 2 by 3 e raised to power x. This is the required answer. So therefore we want to find CS. CS means complete solution. यहाँ पर हमारे पास निकला था e raised to power 0x plus 1 upon 7 e raised to power 2x minus 2 by 3 e raised to power x.
जैसे हमने यहाँ पे केस अप्लाई किया था। तो देयरफॉर सी एस इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस 1 बाई 2x C1 cos रूट 3 बाई 2x प्लस C2 साइन अंडर रूट 3 बाई 2x प्लस ई रेज टू पावर दैट इज 1 प्लस 1 बाई 7 ई रेज टू पावर 2x माइनस 2 बाई 3 ई रेज टू पावर x। दिस इज कंप्लीट सॉल्यूशन। इस टाइप से जब कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना पड़ता है हमें, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 0 गिव्स CF, व्हेन राइट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू 0 वी गेट PI। तो दोनों को मिला के हम CS कहते हैं, दैट इज कंप्लीट सॉल्यूशन। लेट्स ट्राई अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्व d square minus 1 times y equal to x sine 3x plus cos x. Solution. This is most important question. For CF, right hand side equal to 0, we get d square minus 1 equal to 0, or its auxiliary equation equal to m square minus 1 equal to 0. This implies m minus 1 into m plus 1 equal to 0. This implies m equal to 1 or minus 1. Let us take m1 is minus 1, m2 is 1. So therefore, complementary function which is equal to c1 e raised to power minus 1 into x plus c2 e raised to power 1 into x, which is equal to c1 e minus x plus c2 ex. This is called complementary function. Now, particular integral is y that is equal to 1 upon d square minus 1 times x sine 3x plus cos x. अब यहाँ पे दो स्टेप में हमें डिवाइड करना पड़ेगा, बीच में एडिशन है। 1 अपॉन डी स्क्वेयर माइनस 1 टाइम्स एक्स साइन 3x प्लस 1 अपॉन डी स्क्वेयर माइनस 1 कॉस x। यहाँ पे दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पहले फंक्शन ऑल्जेब्रिक है, एक्स फंक्शन है, उसके बाद आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या कुछ और अनदर फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए साइन 3x को हम ई रेज टू पावर आयोटा की फॉर्म में लिखेंगे, लाइक दैट ई रेज टू पावर आयोटा थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। दिस इज यूलर्स थ्योरम, इसका यूज करेंगे। तो देयरफॉर वी कैन राइट हियर 1 अपॉन डी स्क्वेयर माइनस 1 इमेजिनरी पार्ट, दिस इज इमेजिनरी पार्ट, आप देख सकते हो दिस इज इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट इज दिस। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस दैट इज ई रेज टू पावर आयोटा 3x इंटू एक्स, एक्स तो बाहर लिख सकते हैं हम इस टाइप से, प्लस कॉस 1x दैट इज रिप्लेस्ड बाय डी स्क्वेयर इज रिप्लेस्ड बाय माइनस 1 स्क्वेयर दैट इज माइनस 1 माइनस 2 आ जाएगा। तो 1 अपॉन माइनस 1 स्क्वेयर दैट इज माइनस 1 माइनस 1 कॉस एक्स। ये तो सॉल्व इजीली हो गया। यहाँ पर इट कैन बी राइट इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन डी स्क्वेयर माइनस 1 ई रेज टू पावर आयोटा 3x इंटू एक्स माइनस 1 बाई 2 कॉस एक्स। अब यहाँ पर यूज़ करते हैं हम केस नंबर 4, जिसमें अल्फ़ा एक्स डी इज रिप्लेस्ड बाय डी प्लस अल्फ़ा हो जाता है। तो इट कैन बी राइट इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई रेज टू पावर 3ix अपॉन डी प्लस 3i का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस कॉस एक्स बाय 2। Therefore,
डी प्लस 3i का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट बिकम्स, यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, डी प्लस 3i का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस 9i स्क्वायर प्लस 6di माइनस 1, डी स्क्वायर माइनस 9 प्लस 6di माइनस 1, डी स्क्वायर प्लस 6di माइनस 10. तो this is equal to imaginary part of e raised to power 3ix 1 upon d square plus 6di minus 10 into x minus cos x by 2. अब यहाँ पे अल्जेब्रिक फंक्शन है, हमें डिनोमिनेटर में जो भी है वो रिवर्स करना पड़ेगा एंड यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम. तो इसमें हमें जो कांस्टेंट टर्म्स है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू नोट, उसको कॉमन करना पड़ेगा. माइनस 10 को जैसे हम यहाँ पे कॉमन करते हैं इससे, तो हमें क्या मिलेगा, डी स्क्वायर बाय 10 माइनस 6d बाय 10 आयोटा प्लस 1, और इट कैन बी रिटन एज माइनस 10 टाइम्स 1 को पहले लिखा, इसको कैंसिल किया 3/5 माइनस 3/5di माइनस डी स्क्वायर बाय 10. ये बन जाता है हमें कॉमन करके यहाँ से. इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे रख लेंगे. इमेजिनरी पार्ट ऑफ e रेज टू पावर 3ix, अब माइनस 10 है डिनोमिनेटर में, तो इट कैन बी राइट माइनस 1/10, और इसको डायरेक्टली लिखेंगे 1 माइनस 3/5 di माइनस डी स्क्वायर बाय 10 रेज टू पावर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस कॉस एक्स बाय 2. वी कैन राइट हियर, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ माइनस e रेज टू पावर 3ix अपॉन 10 1 माइनस 3/5 di ओनली, बाकी हम टर्म्स को छोड़ देंगे. अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे सीधा प्लस भी कर सकते हैं, बाइनोमियल थ्योरम यही यूज कर लेते हैं एक स्टेप पहले, इंटू एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 2. अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं. इमेजिनरी पार्ट ऑफ माइनस e रेज टू पावर 3ix अपॉन 10 x प्लस फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट दैट इज 1 3/5i माइनस कॉस एक्स बाय 2. इमेजिनरी पार्ट जो हमने लिया था उसको अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट के टर्म्स में इसको ब्रेक करना पड़ेगा. वी विल गेट विच इज इक्वल टू माइनस e रेज टू पावर 3ix अपॉन 10. अब यहाँ पे देखिए, e रेज टू पावर 3ix इज दिस फॉर्म, e रेज टू पावर आयोटा थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. थीटा ये इसमें 3x है, तो वी कैन राइट e रेज टू पावर 3ix दैट इज इक्वल टू कॉस 3x प्लस आयोटा साइन 3x. तो ओवरऑल इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ माइनस 1/10 cos 3x प्लस आयोटा साइन 3x. अब मल्टीप्लाई आगे x प्लस 3/5 आयोटा माइनस कॉस x अपॉन 2. अब इमेजिनरी पार्ट ऑफ, इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, माइनस 1/10, ये तो ओवरऑल वैसे कॉमन है, माइनस 1/10 कर्ली ब्रैकेट कैन स्टार्ट हियर, cos 3x इंटू एक्स, x cos 3x प्लस 3/5 आयोटा cos 3x
plus x into iota sine 3x iota square, that is minus 3 by 5 sine 3x minus cos x upon 2. इमेजनरी पार्ट ऑफ -1/10. अब देखते हैं रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट क्या क्या है इसमें. दैट इज रियल और ये भी रियल है. x cos 3x minus 3 by 5 sin 3x plus iota times 3 by 5 cos 3x plus x sin 3x. ये आपके पास इमेजनरी टर्म्स है. माइनस cos x by 2. अब हमें ये चाहिए. दिस इज द इमेजनरी पार्ट, इसकी बात हो रही है. तो देयरफॉर -1/10 3 by 5 cos 3x plus x sin 3x minus cos x by 2 is called particular integral. Therefore, complete solution equal to complementary function plus particular integral. Complementary function जो हमें अभी निकाला था, complementary function is c1e minus x plus c2 ex. c1 e raised to power minus x plus c2 e raised to power x plus particular integral is added here. Here is minus 1/10 times this can be written first, x sin 3x plus 3 by 5 cos 3x. This is the required answer. इस टाइप से हम कंप्लीट सॉल्यूशन निकालते हैं बाय यूजिंग सम रूल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल. थैंक यू सो मच.